Hello students, welcome you again to the online classes. So as we're discussing about the carbons compound, it's a very interesting and important topic which we're discussing there, right? I hope you are understanding it very well, right? It's very important for you because you are going to get around 5 to 6 marks only on the hydrocarbons. It's very important, right? Even that will help you in your degree level also, up to your, when you go to your master degree or whatever the degree. So on these all degrees you are going to remind these classes because this is a very important for you, right? So what we discussed in the last video, we were discussing about the alkenes there and we left up to the octane, right? So I kept as usual to this topic as we're discussing about the octane. So now let's discuss about the molecular formula and structural formula of the octane, right? Octa means how much? 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right. What is the? It's the alkene. Alkene means how many bonds should be there? There should be one double bond between the carbon atom. Only one. You remember this condition. तो अगर आप ऐसा ले लिए समझो हर एक कार्बन को डबल बॉन्ड ये नहीं होता ऐसा एक ही आना एक की जगह पे दो भी नहीं आना सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आना और ये डबल बॉन्ड आप कहाँ भी ले सकते हैं मैं फर्स्ट कार्बन को लिया सेकंड कार्बन को ले सकते हैं सेकंड को नहीं सर मुझे थर्ड को लेना है थर्ड को भी ले सकते हैं थर्ड को नहीं सर मुझे लास्ट में लेना है लास्ट को भी ले सकते हैं लेकिन याद रखना आप सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आना एक से ज्यादा नहीं आना तो क्या ट्रिक बोला था मैं ट्रिक ये बोला था कि पहले को ही ले लो क्योंकि टेंशन ही नको पहले को ही ले लो आपको कंफ्यूजन का चक्कर नहीं पड़ता राइट तो हर कार्बन को 4 बॉन्ड आना कंपलसरी सर इसको आप एक ही क्यों डाल रहे ऐसा नीचे क्यों नहीं डाल रहे क्योंकि देखो ये 1 2 हो गया और ये 3 हो गया तो एक कार्बन को ऑलरेडी 3 है तो सिर्फ एक ही डालना उधर अब बाकी उनके पास 2 है तो 2 डालो लास्ट के पास एक ही से रहता तो इसलिए 3 आते उधर लास्ट के पास एक डालो सभी को राइट सो नाउ एड द हाइड्रोजन टू ईच बॉक्स So this becomes the structural formula of octane. Then what about the molecular formula? Molecular formula is octa means C8, double is 16. Now about the nonene. Nonene because it's alkene. Non means how much? 9. There are 9 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Double bond in the carbon atoms. This becomes the structural formula. Now molecular formula is C9H18 double. Then the final is the decene, isn't it? Right. Final is decene. Deca means 10. Eth, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec. Double bond with carbon atoms. आपको ये इतना प्रैक्टिस होना ना ऐसा प्रैक्टिस कर करके आपका हाथ ही नहीं रुकना उतना प्रैक्टिस होना ये राइट तभी आप इसको कर सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये करने को बहुत मजा आता है ऐसा नहीं कि सर बहुत ही बोरिंग आता बहुत ही ज्यादा मजा आता है इसको करने को देखो कितना मजे से कर रहा हूं मैं है कि नहीं ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर हम तो इजी से लिख सकते हैं उतना तो इजी किसको नहीं पता तो C10 है डबल करो H20 खत्म सो दिस आर अबाउट द alkenes right so what are the alkenes alkenes are the saturated or unsaturated alkenes are the unsaturated carbons right alkenes are the unsaturated hydrocarbons which have
double bond between the carbon atoms and their suffix is ene. जनरल फॉर्मूला है CnH2n. कितना कार्बन रहता है उसका डबल कर दो, खत्म. आप फॉर्मूले के हिसाब से भी करते बोले तो करो, मुझे उतना फॉर्मूला के नहीं जाना बोल के मैं डायरेक्टली किया उसको सभी को, राइट है. CnH2n आप ऐड करके भी लिख सकते हैं विद द फॉर्मूला. सो राइट, सो दिस अबाउट द alkenes. Now we'll discuss about the which one? Right, alkynes. So know about the alkynes, right? What are alkynes? As we already discussed, they have triple bond between the carbon atoms. That's the first point. Second point is they have the suffix YNE. Third point, their general formula is CnH2n -2. Remember these three things. Everything will be possible, right? It's very easy. It will become if you remember these 3 points. Means about all the things which are alkanes, alkenes, alkynes. If you remember only these 3 things, everything will be okay. So right. Now we'll discuss about alkynes easily. Again, you need to remember one more time prefixes. These prefixes are very important here. You need to practice this one because they will be being same in all the conditions of alkanes, alkenes and alkynes. Prefixes are never going to change. Only the change is the suffix only, right? So now, which are the prefixes are there? Meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, oct, नॉन, डेक. सर आप इतना बार बोले कि हमको क्लास में हमको परफेक्ट हो गया सर, बोल सकते हैं सर, बेटा इतना बार लिखे 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 आपको परफेक्ट ही होना. इधर घर में जाके फिर परफेक्ट करते नहीं बैठना. इतना ऐसा ऐसा सुन लेना, इसको बार 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 इतना रिवाइज करना. आप ऐसा मुंह खोले तो सिर्फ आना मीट इट प्रोब्यूट पेंट एग्जैक्ट ऑन डेक. इस स्पीड से आना आपको, राइट. स्पीड जरूरी नहीं, इधर एग्जैक्ट लिखो, दैट इज एनफ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मेरा एक रूल क्या है समझ लो, मेरा खुद का रूल बोल रहा हूं मैं. कुछ भी करो परफेक्टली करो, थोड़ा ही काम करो परफेक्ट से करो, राइट. बहुत ही ज्यादा काम करना है सभी आधा अधूरा छोड़ के तो कुछ फायदा नहीं है. थोड़े करेंगे टॉपिक, ऐसा नहीं कि हम पूरा सिलेबस को भगाएंगे, ऐसे भी नहीं होता. मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करता. थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, राइट. अच्छे से करेंगे, अच्छे से परफेक्ट से करेंगे और अच्छा समझ के करेंगे. मतलब कुछ भी काम करो परफेक्ट से करो. अगर आप ये प्रैक्टिस भी कर रहे अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, प्रैक्टिस कैसे करना? परफेक्ट से करो, परफेक्ट मैनर से करो. इम्परफेक्शन से कंफ्यूजन करके करना ही नहीं. आपको देखे तो पता चलना है कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का पूरा प्रॉपर्टीज बता देना उनका क्या रहता, राइट. डू इन दैट मैनर और डोंट डू एनीथिंग. सो दैट इज द थिंग. तो सफिक्स क्या है? YNE. खत्म. अल्काइन का सफिक्स क्या है? YNE. तो सभी को YNE डालो. YNE, 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 YNE. तो सर इसको रीड कैसे करना हम? सिंपल से मीथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन. You read in this manner. I9, YNE, right? So now we are going to study about the molecular formula and structural formula of alkynes. Take the first. तो सर फर्स्ट को पॉसिबल है या नहीं है? फर्स्ट का तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अल्कीन भी नहीं आया था, अल्काइन तो आते ही नहीं, वो तो छोड़ दो. तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड रहना सर? 3 बॉन्ड रहना. तो मीथाइन बोले तो एक ही कार्बन है सर, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे आते? इसी के लिए मीथाइन पॉसिबल ही नहीं है. मीथाइन से स्टार्ट मत करो. कहां से स्टार्ट करो आप? मीथाइन से स्टार्ट करो, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन तो हमको चाहिए. तो लेंगे इथाइन. तो सर ये तो बहुत ही इजी हो गया. पहले तो हम कर सकते हैं आराम से. कार्बन ले लो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लो. सर ये लेको, हो गया. ये होगा इथाइन. हो गया क्या? ये इज इट करेक्ट? डू यू थिंक दिस इज द करेक्ट व्हाट आई रिटन हियर?
सर एच एच लिखो सभी को। सर एच भूल गए थे हम, एच आ गया, लिखो देखो। अब ये हो गया इथाइन। इज इट राइट? डू यू थिंक इट्स राइट? देखो सर, कार्बन कार्बन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, और हाइड्रोजन सभी हम एग्जैक्टली किया सर। तो ये हो गया सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है? तो देखिए राइट है रॉन्ग है, देखिए फॉर्मूला से देखिए राइट। तो फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n -2, मतलब सिंपल भाषा में बोलते मैं, डबल करो -2 करो, तो इसका क्या होता है? C2, H बोले तो इथाइन बोले तो 2 ही ना, C2 डबल किए तो कितना होता है? डबल किए तो 4 होता है, -2 किए तो फिर 2 ही आता है, C2H2। तो इधर तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे सर, बिकॉज इट इज नॉट अ राइट। कभी ऐसा गलती नहीं करना बोल के सबको मैं गलती कर करके बता रहा हूँ, राइट, गलती कर करके बता रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आप ऐसा गलती करना ही नहीं कभी भी। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया, अब यहीं पर आप समझ लेना कि कितना बॉन्ड रह गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस वन स्टूडेंट्स। ओके, ऑलरेडी ये कार्बन को 3 बॉन्ड मिल गए, बचे कितना? एक कार्बन के पास तो 4 ही बॉन्ड रहते, 3 ऑलरेडी है उधर, बचे कितना? एक बच गया सर, तो एक ऐसा डालो, खत्म। अब देखो C2H12 H12, सर कितना इजी था जी, हमको तो बहुत ही अच्छे समझ में आया सर। सर बहुत ही इजी है सर, ये तो इजी है इसलिए बोल रहा हूँ आपको मैं, पहले से बोल रहा हूँ आपको मैं, ये बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना। कभी भी साइंस को टफ नहीं मानना, राइट? साइंस इज अ लाइफ, कभी भी इसको टफ नहीं मानना, सिर्फ समझ के पढ़ना, खत्म। ऐसा रट्टा नहीं मारना, कभी भी रट्टा नहीं मारना। सिंपल जो टॉपिक है, टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, समझ के करना। अगर आप समझते बोले तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज द साइंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। डू नॉट थिंक इट इज अ वेरी टफ, राइट? If you are accepting it as a part of life, it becomes very easy. Probe बोलते कितना सर? Can you tell 3? 1 2 3। तो ट्रिपल बॉन्ड लेना सर एक, हम वो तो है, एक ट्रिपल बॉन्ड लेना है। तो देखो सर हम ऐसा कर दिया, देखो सर तुम उसमें किए थे, देखो किसमें? इथिन में किए थे देखो सर, अल्कीन में। तो देखो सर ये हो गया प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सर। हम किए देखो सर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। ये राइट है रॉन्ग है? आप ही बोलो, मैं नहीं बोलता कुछ भी। राइट है रॉन्ग है मैं लिखे सो? ये तो रॉन्ग में भी बहुत रॉन्ग हो गया। देखो कैसा, एक कार्बन को बॉन्ड कितना ना? 4 आना। आप देखो किधर लिखे, कितना लिखे हम? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो रॉन्ग में भी पूरा बहुत रॉन्ग हो गया। तो ये बॉन्ड को हटा दो, फिर ये बॉन्ड मत कट करो अंदर के, राइट? हाँ, खत्म, इतना ही। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। मतलब 2 कार्बन को ऊपर नीचे कुछ भी मत लिखो, साइड में एक लिखो, बिकॉज 1 2 3 4। तो सर इसको ऊपर क्यों नहीं लिखे? काउंट करो, ये एक है इसका, 1 2 3, ये 1 2 3 4, खत्म, 4 बॉन्ड। ऊपर लिखे तो सिर्फ 5 होते, नीचे लिखे तो 6 होते। इसके पास 1 2 3 है, इसलिए हम साइड में एक ले लिए, 4। और बाकी का सेम, बाकी का एज यूजुअल अल्किन का किस्सा था, राइट? ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है? डबल करो -2 करो, 3 का डबल कितना था? C3H6, -2 करो 4, C3H4। नाउ 1 2 3 1 2 3 4, खत्म। C3 है, H4 है। फोर्थ, विच वन इज द फोर्थ? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ब्यूट इज 4, 1 2 3 4। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना है।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशली अल्काइन में आप ये कार्बन को नहीं तो ये कार्बन को लिख के रख लो। आज ही 100% आप गलती करते, 100%। आप घर में जाकर ट्राई करके देखो, बिकॉज माइंड हमारा एक जगह पे नहीं रहता। ये कार्बन में तो पक्का आप गलती कर देते, इधर ऊपर नहीं तो नीचे एक बॉन्ड डाल ही देते आप, कैसे तो कैसा करके, कितना भी बोलो आपको, राइट। क्योंकि आप ये बॉन्ड काउंट ही नहीं करते। 1 2 3 4 ऑलरेडी है, इधर ऊपर नीचे कुछ भी नहीं डालना, इसको खाली छोड़ना, आगे का एज लिखना। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था सर? डबल करो, C4 डबल ऑफ 4 is 8 -2 H6। Now pentine, penta means 5, 1 2 3 4 5, triple bond between the carbon atoms। तो ये तो हो गया सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इजी है लिखने को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना? पेंटा मीन्स 5, C5 डबल 10 -2 H8, C5H8, पेंटा आफ्टर हेक्सा। हेक्साइन, now 6 हेक्साइन, यानी 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के ले लो। याद रखना ये ट्रिपल बॉन्ड आप कहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। अगर आप मिडल में लिए तो क्या प्रॉब्लम होता है आपको बताता हूँ अभी मैं। एज को नीचे पर लिखते देखो, पेंटाइन को मैं नीचे लिखते देखो और एक बार, 3 4 हेक्साइन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 हेक्सा। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड में इधर मिडल में लिया, समझो मिडल में लिया, तो आपको ये फिगर कुछ ऐसा मिलता स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सॉरी ये नहीं आता। ये दोनों सेम ही है, याद रख लो। मतलब आप ट्रिपल बॉन्ड कहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन लेने के टाइम में थोड़ा सोचना आप। अब देखो ये दोनों कार्बन को बहुत ही अच्छे देखना आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी का एज यूजुअल 1 1। मतलब ऐसे मत सोचो कि मैं पहले को ले रहा हूँ, पहले को लेना, नहीं सही नहीं। आप कौन से भी कार्बन को ले लो, लेकिन एक ही ट्रिपल बॉन्ड आता है, एक से ज्यादा नहीं आते। एक ही डबल बॉन्ड होता है, एक से ज्यादा नहीं आते। कभी भी देख लो, एक ही बार लेना। तो दिस ऑल्सो राइट एंड दिस ऑल्सो राइट। बट मेरी मानो, पहले कार्बन को ले लो, चुप्पी, टेंशन नहीं ले रखना कुछ भी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट आप याद रखना, कहाँ भी आए तो भी एग्जाम में अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ के इसको फाइंड करो क्या है बोल के, उधर मत, उधर जाके आप ये नहीं सोचना ये तो कार्बन टेबल में फर्स्ट रीच है, एग्जाम में एग्जाम्पल में थर्ड फोर्थ को दिया तो ये दूसरा था, ऐसा नहीं है। कहाँ भी आने दो ट्रिपल बॉन्ड मिला ना आपको तो आता अल्कानिच, कहाँ भी आने दो डबल बॉन्ड मिला ना तो आता अल्किनिच, राइट। सिंगल बॉन्ड है तो अल्केनिच, ये याद रखना सिर्फ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? हेक्सा मीन 6, C6 डबल 12 -2 10, राइट। नाउ 7th हेप्टा, हेप्टाइन, मीथ ईथ प्रोप प्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ट्रिपल बॉन्ड। is the structural formula. What is the molecular formula? Hepta means 7, C7 double is 14 -2 12, C7H12, heptine. Heptine after octine, 8 octine,
8 1 2 3 6 7 8 ट्रिपल बॉन्ड। प्रैक्टिस करने का है, देखो सिंपल कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करने को आना आपको। एक बार माइंड का बैठ गया समझो, आप कौन से भी पूछो लिख सकते हैं आप। C8 double of 8 is 16 minus 2 14 C8H14। now 9 1 2 3 4 6 7 8 9 ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 4 7 this becomes the structural formula. Molecular formula is C9H 9 2 is the means double of 9 is 18 18 minus 2 is 16 C9H16 and final is डेक्का। डेक्का लिखने को बहुत मजा आता है क्योंकि 10 रहते देखो फाइनल डेक्का डेक्काइन राइट। मीट ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट ऑक्स नॉन डेक ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन 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 कितना C10 double of 10 is 20 minus 2 18। so this much is about the molecular formula and structural formula of alkanes, alkenes, alkynes. Alkane comes under the saturated hydrocarbons, alkene and alkyne comes under the unsaturated carbon। मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या रहते हैं, अनसैचुरेटेड रहते, सिंगल बॉन्ड क्या रहते, सैचुरेटेड रहते। अब एग्जाम में आपको क्या करता हूं मालूम है, कंफ्यूजन करने के लिए आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, स्ट्रक्चर देता है, बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, नेम दिस कंपाउंड और राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस कंपाउंड बोलते हैं राइट। तो तब क्या करना है, मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं अभी एक बार देख लो, इन तीनों में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता आपको, अल्केन अल्किन अल्काइन में राइट। तो एक बार उसको भी देखो। अब आपको एग्जाम में ऐसे देते हैं क्वेश्चन, सिंपल में देखो एक क्वेश्चन देखो आप, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से कैसे देखो। नेम दिस कंपाउंड बोलता एग्जाम में, ऐसा स्ट्रक्चर देता है, नेम दिस कंपाउंड और राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस कंपाउंड बोलता। तो इसको नेमिंग कैसे करना, नेमिंग कैसे करना, पहले कार्बन कितना वो चेक करो, कार्बन कितना वो चेक करो पहले, बाद में देखेंगे। मीट ईथ प्रोप ब्यूट, ये तो हो गया ब्यूट हो गया राइट, ये तो ब्यूट हो गया, बट मत बोले इसको ब्यूट बोलो राइट इन दिस वन। तो कार्बन कार्बन के, एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या आ गया, वायनी आ गया, अल्काइन तो वायनी खत्म। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटाइन, ये होगा इसका नेम। तो सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, 2 3 4 1 2 3 4 C4 डबल माइनस 2 H6 खत्म। अब दूसरा देखो, नेम दिस कंपाउंड, पहले कितना कार्बन है वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बोले तो कितना, हेप्टा हेप्ट राइट। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, कहाँ भी देखो सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये हो गया ANE बिकॉज इट्स अल्कीन खत्म। हेप्टेन
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आते हैं 7 है C7 डबल करो 14 प्लस 2 करो 16 C7H16। अगर रॉन्ग हो रहा है रॉन्ग बोल रहे तो काउंट करो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। अब कभी कभी क्या करता मालूम है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता, एग्जांपल देखो C5H10 write the structural formula of this compound and mention its name। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो और उसका नेम बोलो, बोलता मतलब write the name of this compound and also write its structural formula। तो सिंपल, कितना 5 है C5 है तो 5 ले लो, खत्म 1 2 3 4 5। H10 है, H10 मतलब आपको याद रखना, इधर आपको थोड़ा ही होता है H10 है। अब फॉर्मूले के हिसाब से डाल के देखो बेटा, इधर कुछ भी इनिशियल नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर दिए तो कब पता चलता है सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर से, लेकिन ऐसे दिए तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए तो कैसे समझ लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ दिए तो आप ये फॉर्मूले के हिसाब से देखना। आप ये देखो C5 है, इधर डबल ऑफ 5 इज 10, तो ये क्या आता है अल्कीन आता है, बिकॉज अल्कीन का फॉर्मूला क्या है CnH2n है, राइट। अगर ये 5 की जगह पे 8 आता था, समझो ये क्या आता था, ये आता था CnH2n -2 आता था, -2 बोले तो अल्काइन। अगर ये 8 की जगह पे 12 आता था समझो, तो आता था CnH10 +2, तो आता था अल्केन। क्योंकि इसमें सिर्फ CnH10 दिया मतलब डबल है कार्बन का, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इधर CnH2n, तो CnH10 फॉर्मूला किसका है अल्कीन का है सर। तो अब आपको समझ में ना अल्कीन के क्या रूल है, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आना कंपलसरी। खत्म। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मीथिलप्रोब्यूटेंट, पेंट डबल बॉन्ड है ना PNE, पेंटीन, मीथिलप्रोब्यूटेंट। तो ये राइट है रॉन्ग है, एक बार थिंक करो। मैं बोला था आपको अल्कीन अल्काइन में थोड़े बहुत रॉन्ग होता, कैसे रॉन्ग होता है, आप इसको राइट बोल रहे हैं लेकिन ये राइट नहीं है। देखो इस कार्बन को 1 2 3 6 और एक बॉन्ड आता है इधर 4, तो बॉन्ड को पहले 2 कार्बन के बॉन्ड को रीड करना आपका मेजर वर्क है। देखो जब भी आप अल्कीन अल्काइन केस आता ना, तो पहले 2 कार्बन के बॉन्ड पक्का से एक बार चेक करो कितने आ रहे, क्योंकि बाकियों के कार्बन को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दे ऑल विल सेटिस्फाई द रूल ऑफ द अल्केन्स ओनली, सिर्फ 2 कार्बन को छोड़ के, वो याद रखना, राइट। अगर ये सिंगल बॉन्ड भी अगर लिखना भूल गए आप एग्जाम में, इतना सब कुछ किए सिंगल बॉन्ड नहीं लिखे, तो काट डाल के इसको हाफ मार्क्स देता और इसको 1.5 मार्क्स कट कर देता, सिर्फ इसको हाफ मार्क्स दे देता, इसको 1.5 मार्क्स कट कर देता। तो एक सिंगल बॉन्ड के लिए 1.5 मार्क्स 1 मार्क्स कट करने का कुछ फायदा नहीं है, राइट। तो आपको देखना जरूरी है कि कहाँ क्या लिख रहे हैं आप, और हर कार्बन का बॉन्ड कितना है, दैट्स योर मेजर वर्क, यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट। सो नाउ इन दिस फॉर्म यू विल आस्क द क्वेश्चन, मीन्स आपको स्ट्रक्चर दे के भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करो बोलता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के भी स्ट्रक्चरल फॉर्म करो बोलता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द अल्केन अल्कीन अल्काइन, और वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों के ऊपर अगर 5 मार्क्स तक नहीं आए तो बोलो आप एनुअल एग्जाम में, सिर्फ ये तीनों के ऊपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन the more about the molecular formula, structural formula of saturated and also about the unsaturated hydrocarbons. So I hope you understood these classes on the unsaturated carbon, how to make the molecular formula, structural formula,
Again, I will be back with the next topic, a very interesting thing. So stay home, stay focused. Bye bye.